میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 یا پھر 2,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے الگ الگ وقت میں خدا کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے آج کے دور میں بھی 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہے اور جن کو اللہ نے ظاہری زندگی کی حالت میں اٹھا لیا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 4 نبی کون کون سے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہے؟ اگر وہ آج بھی زندہ ہے تو اس وقت وہ کہاں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سبھی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور بے شک اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ خدا نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے اپنی اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کیا ہے انہیں اللہ نے اس دنیا میں یعنی کہ ان کی زندگی میں صحیح سلامت اٹھا لیا تھا، اور اس لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھا اور وہ آج بھی الگ الگ مقامات پر زندہ موجود ہے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 نبی آج بھی ہماری زمین پر موجود ہے، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو بتا دے گی ان 4 نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہماری زمین پر موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سال بھر میں کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلومات کے لیے بتاتے چلے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی ہے، یعنی کہ پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندر پر حکومت کی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور آپ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ اسلامی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال حج کرنے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ جانکر بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ 2 نبی جو آسمان پر زندہ ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر میں ملتا ہے کہ آپ ہی وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ جانور وغیرہ کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باحیات آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے ان کو اٹھایا گیا اسی دن سے لے کر وہ آج تک زندہ ہے اور جنت میں موجود ہے۔ کل ملا کر کہے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہے اور جنت میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اللہ کے دوسرے نبی جو آسمان پر زندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے دین اور حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور جنہوں نے یہ سازش کی کہ کسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا
जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का प्लान बनाया था उसी को आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामी रिवायत में मिलता है कि जब क़यामत से पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे, तब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। तो मेरे भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है तो हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या बताते हैं। इसको सुनकर आपको नसीहत मिलेगी। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए जर्रे जर्रे में निशानियाँ रखी है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को वो कुव्वत अता की जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मोजज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी तो खोपड़ी जिंदा होकर क्या कहने लगी, आइए जानते हैं। इब्ने जर्सी ने एक रिवायत में बयान किया है कि एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे तो एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे कि हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़े को जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके। हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और इसने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ये अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। उसको खोपड़ी ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का बादशाह था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा, मुझसे हज़ारें औलादें हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया, तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, बड़ा लालची था, मुझे दुनिया फतह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हज़ारों शहर फतेह किए, हज़ारों जंगें जीती, हज़ारों बादशाह को कत्ल किया, मगर आखिर में मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया में से ले जाने के लिए कुछ न था। जो कुछ मैंने फतेह किया इस दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की ज़िंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिश का फल देता है, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो पानी की दुनिया है। जो यहाँ आया उसे एक दिन जरूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह मेरे भाइयों, एक और वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमद भी आकर आपके सफ़र में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते में से गुजरने लगा।
कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमद ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और वो कहने लगा कि ये किसका ढांचा हो सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये मैं नहीं जानता। उस अहमद ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आज़म है जिसे पढ़कर आप मुर्दों में जान डाल देते हैं। मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप करे अहमद, तू उस इसमें आज़म को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ़ शख्स कहने लगा, ठीक है, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ़ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, इस अहमद के इस तरह से जिद करने में क्या राज छुपा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी कि इसमें हैरत की क्या बात है। हमाकत को हमाकत की ही तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी का ही घर ढूंढते हैं। इतने में से उस बेवकूफ़ ने उन हड्डियों में इसमें आज़म पढ़कर फूंकने की कोशिश की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की तो कहने लगा, अब आप अपना मोजज़ा दिखाने में वो खुल करने लगे, या शायद आपकी जुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें इस्लाम को नागवार गुजरी और आपने उन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़कर फूंक दिया। जैसे ही आपने ऐसा किया तो उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गया कि उस शेर ने एकदम से उस अहमद पर हमला किया और उसको पल भर में फाड़कर पास पास कर दिया, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शेर के मुखातिब हुए और कहा कि ए जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेजी से उस शख्स को क्यों मार दिया। शेर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, क्योंकि इस बेवकूफ़ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े तो कर दिए, तूने इसको खाया क्यों नहीं। शेर कहने लगा, हज़रत, मेरा अब इस दुनिया में रिज़्क़ ख़त्म हो गया है। अगर इस दुनिया में अभी तक मेरा दाना पानी होता तो मैं मुर्दे में शुमार नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वो एक बार हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े से पता चलता है कि अल्लाह इस दुनिया को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया की हकीकत समझाना चाहता था। जो जिस हाल में है उसी हाल में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, न रूज अच्छा है न जवाल अच्छा है, मेरे मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो मेरे भाइयों, ये थे अल्लाह के 4 नबी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज तक जिंदा है और अलग अलग मकाम पर मौजूद है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।